So dear friends, today is the very important day. और आज प्रिय दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। So because the resurrection of Jesus Christ is the key thing for every believer's life. क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हर एक विश्वासी के जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। So you should understand this in detail through the word of God. और परमेश्वर के वचन के जरिए आप इसे विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। Because how much you are having the wisdom and knowledge to know the resurrection of Jesus Christ, you will receive more blessings from the Lord. क्योंकि जितना ज़्यादा आप बुद्धि के साथ उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को समझेंगे, आप परमेश्वर से और ज़्यादा बुद्धि को प्राप्त करेंगे। So lots of blessings are inside the resurrection of Jesus Christ. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान में बहुत सारी आशीषें भरी हुई हैं। So today, based on the word of God, we are going to meditate the important and the very useful things for our spiritual growth. और आज परमेश्वर के वचन के जरिए हम उन वचनों पर मनन करेंगे जो हमारी आत्मिक वृद्धि के लिए जरूरी हैं। So the resurrection of Jesus Christ, it should be fully make a impact inside your mind and heart. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके मन और प्राण पर एक बहुत ही गहरी छाप को छोड़ता है। So right now also those who are here and you are listening the God's word, if your mind, your heart is not at all connected with God, you please ask the Lord right now. The Holy Spirit is changing your heart right now to understand the great power in the resurrection of Jesus Christ. और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो अभी भी यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य या उसके साथ वो संबंध में नहीं जुड़े हैं, हालांकि वो यहाँ वचन सुनने तो बैठे हैं। आप अपने मनों को, अपनी तमाम इच्छा और बुद्धि को उस परमेश्वर के साथ जोड़े ताकि आप वचन की उस आशीष को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। Because the devil all the time want to distract our mind to receive the God's blessing. क्योंकि शैतान निरंतर इस प्रयास में रहता है कि वो आपके मन को भटकाने पाए। So right now the Holy Spirit is going to open your mind and heart. Everyone, you open your mind, open your heart. Lord, today is the day of resurrection. Lord, the same grace should be come upon me also, Lord. Fill me. Everyone, you pray right now. The grace of the Lord is opening your understanding, opening your heart to know the great truth inside the resurrection of Jesus Christ. और उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उस परमेश्वर को पुकारे और कहे कि परमेश्वर मेरे उस बुद्धि को, मेरे उस आत्मिक सोच और समझने की क्षमता को खोल दो ताकि मैं तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य को समझ सकूं और शैतान मुझ पर कोई भी कब्जा न करने पाए। The resurrection of Jesus Christ is the perfect, the fulfillment of a God's plan. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान परमेश्वर की योजना का एक बहुत ही सफल नमूना है। So in your life also the same resurrection grace is going to be come right now. The Lord is going to move in your heart and mind in a unique way today. और वही पुनरुत्थान का सामर्थ आज आपके जीवन में भी आने जा रहा है। वही पुनरुत्थान का सामर्थ आज आपके हृदय और मन को भी बदलने के लिए है। All the evil spirit working in your life, it is going to be totally destroyed by the resurrection of Jesus Christ right now. और हर वो दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य जो आपके जीवन में काम करती है, वो यीशु के पुनरुत्थान से आज नाश होने जा रही है। Receive your deliverance right now. अपने छुटकारे को अभी ग्रहण करें। Everyone, you receive your deliverance right now. हर एक अपने छुटकारे को इसी समय ग्रहण The करे। resurrection power of Jesus Christ is coming upon every one of you. ओ वो यीशु मसीह का सामर्थ आप में से हर एक पर आ रहा है। The Lord is touching you right now. परमेश्वर आप में से हर एक को छू रहे हैं। All the disturbances are going away. हर एक परेशान करने वाली चीजें जा रही The हैं। joy is coming. ओ वो आनंद आ रहा है। Today is a day of rejoice. आज आनंद का दिन है। Why you are going through sorrows and worries? क्यों आप परेशानियों और पीड़ाओं में गुजर रहे Now हो? receive the joy of the और अब Lord. परमेश्वर के उल्लास को ग्रहण करें। The joy is coming and filling every one of your heart right ओ now. वो आनंद आ रहा है और आप में से हर एक के हृदय को भर रहा है। Everyone, you receive the joy of the Lord. That is your strength.
strength today. और आज हर एक परमेश्वर के उस आनंद को ग्रहण करे, क्योंकि यही आपका परमेश्वर में सामर्थ है। The resurrection day is a day of joy. पुनरुत्थान का दिन आनंद का दिन है, The day of happiness. खुशी का दिन है, The day of great freedom. एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता का दिन है, The day of great spiritual enlightenment. और एक बहुत बड़े आत्मिक बदलाव का दिन है, The day of the day of completion. एक पूरे होने का दिन है। The day the Lord want to perfect everything concerning your life. और वो दिन है जो परमेश्वर आपके जीवन से जुड़ी हर एक बातों को संपूर्ण करना All चाहता the है। incomplete things are leaving right now. हर एक वो बात जो अधूरी है जा रही है। All the unwanted sorrows and worries are going away from your heart right now. हर एक अनचाहे दुख और तकलीफें आपके हृदय से जा रही हैं। Everyone, you open your heart and enjoy the joy of the resurrection day. हर एक अपने हृदय को खोले और परमेश्वर के उस पुनरुत्थान का आनंद उठाए। The Holy Spirit is going to help you. वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। Romans 10 verse 9. रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 वचन। Everyone, you open your Bible. हर कोई अपनी बाइबल खोल ले। Here Romans 10 verse 9 says like this: if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Jesus from the dead, you will be saved. और वचन यहाँ इस प्रकार कहता है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। So here the resurrection power of Jesus Christ is mentioned very clearly. और इस वचन में परमेश्वर के उस उद्धार, उस पुनरुत्थान की सामर्थ का भली भांति जिक्र है। So two things you have to do. आपको दो चीजें करने की जरूरत है। Number one, you have to confess and you have to declare, you have to proclaim. पहली चीज आपको अंगीकार करना और अपने मुंह से इस बात को स्वीकार करना है। So what is that? Jesus Christ is my Lord. और वो क्या है? वो ये है कि यीशु मेरा प्रभु है। Jesus is the Lord. यीशु ही प्रभु है। Number two, you have to believe in your heart. और दूसरी बात कि आपको अपने हृदय में विश्वास करने की जरूरत है। Believe means 100% the faith. No any doubt, no any second, no any kind of the third opinion, not like that. Only believe in your heart about the resurrection of Jesus. और विश्वास का मतलब कि उस विश्वास के वक्त आपके हृदय में कोई पहली, दूसरी या तीसरी राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका विश्वास केवल ये होना चाहिए कि यीशु पुनरुत्थित हो गए हैं। So you have to believe in your heart right now. God raised Jesus from the dead. और आपको अपने हृदय में इसी वक्त इस विश्वास को लेने की जरूरत है कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। Then the salvation grace will come upon you. You will be saved. और तब वो उद्धार का सामर्थ आपके ऊपर आएगा और आप बचाए जाओगे। So whatever may be the problematic situation you are going through. तो परेशानियां या परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जिससे आप गुजर रहे हो, Whatever may be the fear inside your heart, you are not able to enjoy the God's salvation. और वो डर कोई भी क्यों ना हो जो आपके हृदय में है, जो परमेश्वर के उद्धार का आनंद आपको लेने नहीं दे रहा है। Whatever it may be the disturbance, anxiety, depression, whatever it may be, today you are going to believe in your heart. God raised Jesus from the dead. और आपके हृदय में कोई भी परेशानी या आपको भरमाने या भटकाने की चीजें या आपको परेशान करने की बातें क्यों ना हो, आपको ये विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। The salvation will come in your life. और वो उद्धार आपके जीवन में आ So जाएगा। everyone, today you are going to open your mouth and declare Jesus is the Lord. और इसीलिए आप में से हर एक को आज जबान खोलकर ये बोलने की जरूरत है कि यीशु ही प्रभु है। Everyone open your mouth right now and say Jesus is the Lord. हर एक अपनी आवाज को ऊंचा करे और बोले यीशु ही प्रभु है। I am going to, yes,
I am going to believe now. मैं इस बात पर अब विश्वास करने जा रहा हूँ। God raised Jesus from the dead. परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। Everyone, you open your mouth and say, I am going to believe now. हर एक अपनी आवाज को ऊंचा करे और बोले कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। God raised Jesus from the dead. परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। This should be your everyday belief inside your heart. और ये आपके प्रतिदिन का विश्वास होना चाहिए आपके स्वयं के हृदय के अंदर। Don't believe the situation you are going through right now. जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं इस वक्त उस पर भरोसा ना करें। So this is the devil full of lies. He used to put a lie before you and disturb you. क्योंकि ये तो शैतान है जो झूठ को आपके सामने लेकर आता है और आपको परेशान करता है। All the time he will speak to. The devil also used to speak to through the many things. You will not be prosper. Your family will not be prosper. Your children will not be prosper. Like that the lies will be come and attack you. और शैतान कई बार इस तरह की बातें करता है कि आप तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप कभी उन्नत नहीं होंगे, आपका परिवार उन्नत नहीं होगा, आपके बच्चे उन्नत नहीं होंगे और इस तरह की बहुत सारी झूठी बातें वो शैतान लाकर आपको परेशान करता रहता है। Immediately you should speak this, you should confess and declare, Jesus is the Lord. I am believing inside my heart, God raised Jesus Christ from the dead. और आपको उसी वक्त इस बात की घोषणा करने की जरूरत है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर मैं यकीन करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया है। Automatically the evil, the devil will go away from your life. और फिर खुद ब खुद वो शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा। So today whatever may be the situation you are going through, और इसीलिए आज कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जिससे आप गुजर रहे हैं, right now the resurrection power of Jesus Christ is coming upon every one of your life. और इसी समय परमेश्वर और यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान की सामर्थ आप में से हर एक के जीवन पर आ रही है। All the unwanted unbelief in your heart is leaving right now by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपके हृदय की हर एक वो अनचाही बातें, वो अनचाही इच्छाएं, वो सारी चीजें जा रही। Just believe, Lord, help me. I want to all the time filled with your resurrection power. आपको बस कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरी मदद करे ताकि मैं हमेशा आपके पुनरुत्थान की सामर्थ से भरा रहने पाऊं। Now the deliverance is coming upon you. और अब छुटकारा आपके ऊपर आ रहा है। Everyone, you confess, Jesus is my Lord. और हर एक भी इस बात को स्वीकार करे कि यीशु मेरा प्रभु है। Jesus Christ is raised from the dead. यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए हैं। He is able to help me. वो सामर्थी है मेरी मदद करने के लिए। I am going to believe him more and more. मैं उस पर और ज्यादा से ज्यादा विश्वास करूंगा। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। Dear friends, you should keep on declare Jesus is the Lord. प्यारे मित्रों, आपको निरंतर इस बात को स्वीकार और अंगीकार करने की जरूरत है कि यीशु मसीह जीवित है। Believe in your heart right now. The present problem you are going through is much more lesser than the resurrection power of Jesus Christ. और आपको अपने हृदय में इस बात को विश्वास करने की जरूरत है कि जिन परेशानी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं वो पुनरुत्थान की सामर्थ से बड़ी नहीं है। The present confusion in your heart is a lie of the devil. और आपके हृदय में इस वक्त जो भी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही है वो सिर्फ शैतान का वो झूठ है। Several times the devil want to put your mind through the worries and sorrow about the money. और कई बार वो शैतान ये कोशिश करता है कि पैसों को लेकर आपके दिमाग को परेशान और बहुत ज्यादा चिंतित किया जाए। What I will do for my money? क्या करूं मैं अपने पैसों के लिए? This is the lie of the devil. ये वो झूठ है जो शैतान बार-बार Immediately बोलता you है। should say, Jesus Christ is alive to help me. और तुरंत आपको ये कहने की जरूरत है कि यीशु जिंदा है मेरी मदद करने के लिए। The resurrection power of Jesus Christ is in me. और यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर है। I will not believe the lies of the devil anymore. मैं उस शैतान के झूठ पर और यकीन नहीं करता।
Jesus Christ is a living God. यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। Because Jesus lives, I can face tomorrow. क्योंकि वो जीवित है ताकि मैं कल को मुकाबला कर सकूं। I will not worry about anything in this world. मैं इस संसार की किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं All होऊंगा। the time I will say through my mouth, Jesus is the Lord. I believe in my heart, God raised Jesus from the dead. और मैं निरंतर अपने मुख से इस बात को कहा करूंगा कि मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित कर दिया है। The salvation grace will come upon you. और वो उद्धार का सामर्थ आपके ऊपर होगा। If you are filled with the joy of the salvation, और जब आप उस उद्धार के आनंद से भर जाएंगे, you will not worry about the worldly things. आप संसार की किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं The होंगे। resurrection power of Jesus Christ is ready to fill you today once again. और वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ एक बार फिर से आपको भरने के लिए तैयार So है। inside the salvation, सो उस उद्धार के अंदर the heart, the desire to be filled with the Holy Spirit is there. उसके अंदर ये बात है कि हृदय और आत्मा कैसे पवित्र आत्मा से भरने पाए। If you are filled with the salvation, अगर आप उद्धार से भरे हुए हैं what is the salvation? तो उद्धार क्या है? This word it is written, this is the meaning of the salvation. और वचन में ये लिखा हुआ है और यही उस उद्धार का मतलब है। Everyone you read it again, Romans 10:9. Jesus is my Lord. और आप में से हर एक फिर से इस वचन को पढ़े। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 वचन, यीशु ही मेरा प्रभु है। God raised him from the dead. Jesus raised from the dead. परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। यीशु मसीह मुर्दों में से This जीवित हो should be your गया। belief. और ये आपका विश्वास होना चाहिए। Immediately the salvation grace will come upon you. और उसी समय उद्धार का सामर्थ आपके ऊपर आएगा। After the salvation, और उस उद्धार के बाद there is a heart for you to filled with the Holy Spirit. आपके पास एक हृदय होना चाहिए जो पवित्र आत्मा की भरपूरी को चाहता How हो। many of you are not yet filled with the Holy Spirit? Today is the day. आप में से कितने हैं जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा के मस्से को नहीं पाया, क्योंकि आज ही वो दिन Today है। very specially we are going to pray for the filling of the Holy Spirit. आज विशेष कर हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना The Holy करेंगे। Spirit is going to come and fill every one of you today. और वो पवित्र आत्मा आएगा और आप में से हर एक को भर देगा। So after the filling of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा से भरने के बाद walk in the spiritual way, grow in the spiritual way every day. रोज बर रोज उस आत्मिक रास्ते पर चले, उस आत्मिक रास्ते पर बढ़े। This is the God's plan. और ये परमेश्वर की योजना है। So today are you ready to believe your salvation? तो क्या आज आप तैयार हैं अपने उद्धार पर विश्वास करने के लिए? Automatically the Holy Spirit will come upon you. और वो जो पवित्र आत्मा है वो स्वयं खुद ब खुद आपके ऊपर आ जाएगी। Many of you are struggling with the worldly sinful distraction in your life. आप में से बहुत लोग अपने जीवन में संसार के उन पाप में बातों में लड़ रहे हैं। Today the Holy Spirit is going to come upon you. वो आज वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आ रही है। The heaven will be open right now. वो स्वर्ग इसी समय खुल जाएगा। The fire from the altar of heaven will come and fill you. ओ स्वर्ग की वेदी से वो आग उतर कर आप में से हर एक को भर देगी। All the evil spirit will destroy today. और हर एक दुष्ट आत्मा नाश आज हो जाएगी। Today the mighty grace of the resurrection is coming upon you. क्योंकि आज पुनरुत्थान का वो अद्भुत अनुग्रह आप में से हर एक पर आ रहा है। Dear friends, प्यारे मित्रों, the salvation is a very important. एक उद्धार बहुत जरूरी है। If any one of you here not yet received Jesus Christ, this is the day. 100% Jesus, come into my heart, Lord. You are the resurrected Savior. I believe in you, Jesus. Fill me. You will receive your salvation today. आप में से अगर किसी ने अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया है, आज ही वो दिन है। उसे पुकारे और कहे, यीशु मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलता हूँ, मुझे अपने उद्धार से भर दे और मुझे अपनी आत्मा से भर दे। So all of you should going to receive a deliverance today. और आज आप में से हर एक उस छुटकारे को पाने जा रहा All the है। closed doors are going to be open up in your life. हर एक बंद दरवाजे आपकी जिंदगी के खुलने वाले हैं। So after the death of Jesus Christ, सो यीशु मसीह के मृत्यु के बाद the worldly people had a thought to
close him inside the tomb with a big stone. No one can able to roll away, pull away. संसार के लोगों ने सोचा कि उसकी कब्र को एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया जाए ताकि कोई उस पत्थर को वहां से हटाने ना पाए। That is the work of the devil. वो शैतान का काम था। What happened on the resurrection day? लेकिन पुनरुत्थान के दिन क्या हुआ? John chapter 20 verse 1 says, यूहन्ना की इंजील 20 उसका 1 वचन कहता है, the Mary Magdalene, she came first early in the morning near the tomb of Jesus. और मरियम मगदलिनी वो पहली स्त्री थी जो यीशु मसीह के कब्र के पास सुबह सुबह आती है। John chapter 20 verse 1. यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय उसका पहला A वचन। big stone, no man can pull it by their hand. Such a big stone was put up and close to the tomb and put inside Jesus. एक बड़ा पत्थर जिसे मानवीय हाथ हटा नहीं सकते थे, वो यीशु की कब्र पर डाले हुए थे। But the Bible says, John 21, she came, Mary Magdalene came and see, already the resurrection power came and rolled away the stone. Jesus Christ risen from the dead. लेकिन वचन बताती है यूहन्ना की इंजील 20 उसका 1 में कि जब मरियम मगदलिनी उस स्थान पर आती है तो परमेश्वर का सामर्थ उस बड़े पत्थर को वहां से हटा देता है और यीशु मसीह पुनर्जीवित हो चुके हैं। So let us praise God. All the stones are going to be rolled away right now in your life. तो आए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से भी हर एक पत्थर को हटाने पर है। Whatever may be the stone stopping your blessing. वो पत्थर कुछ भी क्यों ना हो जो आपकी आशीषों को रोक रहा है। Whatever may be the thing stopping your family spiritual blessing. वो कोई भी बात क्यों ना हो जो आपके परिवार की आत्मिक वृद्धि को रोक रही है। Now the Holy Spirit is coming. All the stones are going to be rolled away in Jesus' और अब name. पवित्र आत्मा आ रहा है और वो हर एक पत्थर को यीशु के नाम से हटा रहा है। Everyone receive your deliverance right now. हर एक छुटकारे को इसी समय ग्रहण करे। The salvation grace will lead you to the resurrection grace. वो उद्धार का अनुग्रह आपको पुनरुत्थान के अनुग्रह की ओर ले जाएगा। No one can stop the resurrection power of Jesus Christ. कोई यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ को रोक नहीं सकता। Whatever may be the big stone in this earth. इस पृथ्वी पर कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हो। Whatever may be the walls of Jericho is coming before your life. वो यरीहो की दीवार जैसी चीजें भी क्यों ना आपकी जिंदगी के आगे आ रही The हो। resurrection power of Jesus Christ is coming and destroy everything. यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ आ रही है और हर एक चीज का नाश कर रही है। Everyone receive a deliverance right now. हर एक छुटकारे को इसी समय ग्रहण करे। No more stones can inside your heart, inside your body. और कोई भी पत्थर ना तो आपके शरीर में और ना ही आपके जीवन में। Every stone like a problems are going to be rolled away by the resurrection power of Jesus Christ. और हर एक पत्थर परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ से आपके जीवन से जा रही है। Keep on, open your mouth and declare your faith. Jesus is my Lord. अपनी आवाज को ऊंचा करे और बोलते रहे और इस बात की उद्घोषणा करे कि यीशु ही मेरा प्रभु है। Jesus is my Lord. यीशु ही मेरा प्रभु है। God has raised him from the dead. ओ परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जीवित कर दिया। Jesus is alive in my life. वो यीशु मसीह मेरे जीवन में जीवित है। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। Everyone open your mouth and cry and bold. You can confess your faith right now. हर एक अपनी आवाज को ऊंचा करे और इस बात का अंगीकार करे कि यीशु जीवित है। Jesus is alive. यीशु जीवित है। Jesus is alive. यीशु जीवित है। Now the deliverance is happening. और अब वो छुटकारा आ रहा है। Everyone receive a deliverance. हर एक उस छुटकारे को ग्रहण करे। All the evil spirits are going away from your life right now. हर एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन से इसी समय जा रही The है। Lord is delivering you right now. परमेश्वर आपको इसी समय छुटकारा दे रहे हैं। You are going to grow in your spiritual life today. आज से आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएंगे। Jesus Christ is alive to help you today. यीशु मसीह जीवित है ताकि आपकी मदद कर सके। So finally you have to know some important thing from the word
word of God. और अंततः अब कुछ बातें जो वचन से है और बहुत जरूरी है आपकी जानकारी के Everyone, लिए। you note this word in your home, you can read it again and again. हर एक इस वचन को लिख सकते हैं, घर में जाके इसे बार बार पढ़ें। Romans chapter 6 verse 4 to 11. रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 4 से 11 वचन। So here the important things are written about the resurrection of Jesus Christ. और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं जो यीशु के पुनरुत्थान से ताल्लुक रखती So हैं। what is the important of this word of God? और इन वचनों में क्या ऐसा है जो महत्वपूर्ण है? We are died in Christ. हम मसीह में मरे, We are buried with Christ. हम मसीह के साथ दफनाए We भी are गए, raised along with the resurrection power of Jesus और Christ. हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ पुनर्जीवित भी हुए हैं। You should know that Jesus not only died for himself. और आपको ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह अपने लिए नहीं मरे, Jesus died for every one of us, every one of you. और यीशु मसीह आप में से हर एक के लिए, हम में से हर एक के लिए मरे। Jesus buried inside the tomb for every one of us. और यीशु मसीह उस कब्र में हम सब के लिए दफनाए भी We गए, too buried in Christ. और हम भी यीशु मसीह के साथ दफनाए गए। Jesus risen from the dead on the third day today. और यीशु मसीह तीसरे दिन, आज के दिन जीवित हो उठे। All of us, we are also raised from the dead. और हम में से हर एक भी मुर्दों में से जीवित हो उठा Everyone, है। you confess this. I am raised from the dead along with Jesus. आप में से हर एक इस बात को स्वीकार करे कि हम यीशु के साथ मुर्दों में से जीवित हो चुके हैं। Thank you, Jesus. Everyone, you say, I am raised from the dead along with the resurrection power of Jesus Christ. आप में से हर एक इस बात को स्वीकार करे कि हम यीशु मसीह जो के साथ मुर्दे थे और फिर हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ जीवित हो गए हैं। Okay, so you have to note this word. Romans 6:4 very clearly says, और आप इस वचन को लिख सकते हैं, रोमियो की पत्री 6 उसका 4था वचन। the 4 word says, we died in Christ and we buried with Christ by baptism. और वचन कहता है क्योंकि हम मरे और दफनाए भी गए हैं मसीह के बपतिस्मे के द्वारा। We are buried with Christ through the baptism. हम उस बपतिस्मे के द्वारा यीशु मसीह के साथ दफनाए गए So हैं। those who are taking baptism, they used to go deep inside the water. और हर एक जो बपतिस्मा ले रहा है उसे पानी में बहुत नीचे जाने की जरूरत है। So that means they are buried for the worldly sins. और इसका मतलब कि वो संसार की पापों के लिए दफनाए जा चुके हैं। So in the baptism, after that they will be raised with the resurrection power of Jesus Christ. और बपतिस्मा लेने के बाद जब वो ऊपर आते हैं, इसका मतलब कि वो परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ ऊपर आ रहे This हैं। Romans 6:4 very clearly says, just as Christ was raised from the dead by glorious power of the Father, we also may live new lives. और रोमियो की पत्री 6 अध्याय इस बात को साफ साफ कहता है कि जैसे मसीह मुर्दों में से जीवित हो उठा और परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार ऐसा हुआ, वैसे भी अब हम भी एक नया जीवन जीते हैं। As per the Bible, every one of us should take the baptism. और बाइबल के अनुसार हम में से हर एक को बपतिस्मा लेना जरूरी है। This word of God very clearly says, we are buried with Christ by baptism. क्योंकि ये वचन साफ साफ कहती है कि हम बपतिस्मा के द्वारा मसीह में दफनाए गए हैं। And we are raised by the glorious power of the resurrection of Jesus Christ. और हम पुनर्जीवित हुए हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की उस अद्भुत सामर्थ के साथ। This is the secret of the resurrection power of Jesus Christ. और यही तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ का सबसे रहस्य से भरा हुआ If बात you है। are having the great knowledge and understanding in this, और अगर आपके पास इन बातों को लेकर बहुत ज्यादा समझ है, you will live with Jesus Christ every day. आप यीशु मसीह के साथ रोज जीवन जिएंगे। Every day you will enjoy the resurrection power in your life. आप उस पुनरुत्थान की सामर्थ का आनंद अपने जीवन में रोज लेने पाएंगे। So again you keep on meditate this word Romans 6:4. It says we are died and buried with Christ by baptism.
और आपको इस वचन पर मनन करने की जरूरत है। रोमियो की इंजील 6 उसका 4 वचन कहता है कि हम यीशु मसीह जैसा मरा और दफनाया गया, वैसे ही हम बपतिस्मा के द्वारा मरे और दफनाए गए हैं। And we are raised with Christ today. और आज हम मसीह के साथ पुनर्जीवित भी That हुए means हैं। now Christ is living in us. इसका मतलब कि अब मुझ में मसीह जीवित है। So that is the resurrection power of Jesus Christ. Jesus is living in me. और यही तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मुझ में जिंदा है। So continuously word 5 Romans 6:5 says, और रोमियो की पत्री 6 उसका 5 वचन कहता we है, are united with Jesus in his death. क्योंकि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं। We will also be raised to life as he raised from the dead. और हम वैसे ही जीवित हो उठे हैं जैसा वो मुर्दों में से जीवित हो उठा। So the word 7 says, we died with Christ, we set free from the power of sin. और 7वां वचन कहता है, क्योंकि जो मर गया है वो पाप से छूटकर निर्दोष ठहरा। So whosoever believe and receive the salvation, you are already dead for your sin. सो जिस किसी ने उस उद्धार को ग्रहण कर लिया है और अंगीकार कर लिया है, आप पाप के लिए मृत्यु को प्राप्त कर चुके So हैं। the words 8 Romans 6:8 says, since we died with Christ, we know we will also live with Jesus. और रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, अब यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे। You should believe what is the resurrection. I am died with Jesus Christ. I am resurrected with Jesus Christ. This is the power of the resurrection. आपको विश्वास करने की जरूरत है कि मैं यीशु के साथ मरा और उसी के साथ पुनरुत्थित भी हो चुका। यही तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। This should be in your mind all the time. और ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। If you are having the great knowledge about the resurrection power, you will not go away from the faith any time. और अगर आप उस पुनरुत्थान की सामर्थ की समझ को रखते हैं तो आप उस विश्वास से कभी भी भटकेंगे नहीं। So today you have to confess your faith again and again. और इसीलिए आपको बार बार आज अपने विश्वास के अंगीकार करने की जरूरत So है। the word 9, Romans 6:9 very clearly says, here says, we will never die, Jesus will never die again. और रोमियो की इंजील 6 उसका 9 वचन इस प्रकार बहुत साफ साफ कहता है कि मसीह यीशु बार बार नहीं मरेंगे। So Jesus will never die again. सो यीशु मसीह फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे, Death no longer has any power over him. क्योंकि मृत्यु का कोई भी अधिकार उसके ऊपर नहीं रहा। So this is talk about our spiritual life. We will not go into our sinful life anymore again. और ये हमारे आत्मिक जीवन की बात करता है। हम जब आत्मिक जीवन में भर रहे हैं तो हम उस पापमय जीवन में फिर दोबारा नहीं जाएंगे। Sin can't have the power over your life anymore. और पाप का आपके ऊपर बिल्कुल भी अधिकार नहीं रहा। So you may think, what is the sins? सो आप सोच रहे होंगे ये पाप क्या है? Small sorrow, small anger, small unwanted irritation, small unhappiness inside your heart, that also sin. आपके हृदय में थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा गुस्सा, किसी बात को लेकर छोटा सा असंतोष, वो भी पाप है। You have to come back to the love of Jesus today. आपको यीशु मसीह के प्यार के पास फिर से वापस आने की जरूरत है। No worldly sin can power over your life anymore. संसार का किसी भी पाप का आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। So this Romans 6:10 very clearly say Jesus died once to break the power of sin. और रोमियो की पत्री 6 उसका 10 वचन कहता है कि यीशु मसीह एक बार मरा ताकि पाप के बंधनों को तोड़ सके। The power of the sin was totally broken today. और आज पाप के वो सारे बंधन पूरी रीति से तोड़ दिए गए हैं। So the Bible says now Jesus lives. और इसीलिए वचन कहता है कि यीशु अब जीवित है। He lives for the glory of God. वो जीवित है परमेश्वर की महिमा के लिए। Because Jesus lives, you are also going to live. क्योंकि यीशु जीवित है, आप भी जीवित रहने जा रहे हैं। Your life is also going to bring the glory of the और Lord. आपके जीवन से भी
परमेश्वर को महिमा मिलने जा रही The है। people will see you, they will see Jesus in your life. जब लोग आपको देखेंगे वो आपके जीवन से यीशु को देखेंगे। This is the God's plan for every one of us. ये परमेश्वर की योजना आप में से हर एक के लिए है। So you should all the time remember and consider yourselves to be dead to the power of sin. और इसीलिए आप में से हर एक अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझे। The word 11, Romans 6:11 says, you all the time you should remember and consider inside your heart, I am died for the power of the worldly sin. और इसीलिए रोमियो की पत्री 6 उसका 11 वचन कहता है कि तुम भी अपने अपने हृदय में इस बात को मान लो कि पाप के लिए तुम मृतक हो चुके हो। And I am alive to God through Jesus Christ today. और मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए अपने आप को आज से जीवित समझो। So how many of you ready to receive the Holy Spirit in your life? सो आप में से कितने तैयार हैं आज पवित्र आत्मा को पाने के लिए? Now this is the time the Holy Spirit is going to be come upon every one of you. और अब वो समय है जब पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर अपनी जुम्बिश को करने वाली है। Any one of you not yet receive the gift of tongue, the speaking the heavenly language today, ask the Lord. That is 100% essential according to the Bible. और अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वरदान नहीं पाया है अन्य भाषाओं का, स्वर्गीय भाषाओं का, तो परमेश्वर से मांगे क्योंकि वचन के अनुसार ये बहुत जरूरी है। So before we pray, you have to confess once again Romans 10 verse 9. और इससे पहले कि हम प्रार्थना करें एक बार फिर से रोमियो की पत्री 10:9 के अनुसार हम अंगीकार करेंगे। Yeah, now you are going to open your mouth and declare, Jesus is my Lord. और अब आप अपनी अब ज़बान को खोले और कहे यीशु ही प्रभु है। God raised Jesus from the dead. परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। Now the salvation and the Holy Spirit anointing belongs to me. और अब वो उद्धार और वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझसे है। The Holy Spirit belongs to me. वो पवित्र आत्मा मेरे लिए है। The resurrection power of Jesus Christ belongs to me. वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ्य मेरे लिए है। Now everyone, you close your eyes. Now the time of prayer. अब हर एक अपनी अपनी आंखों को बंद कर ले, ये प्रार्थना का समय है। Now the Holy Spirit is ready to fill you. और अब पवित्र आत्मा आप में से हर एक को भरने के लिए तैयार है। How many of you want the Holy Spirit today? आप में से कितने आज उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को चाहते हैं? Now open your mouth and cry to the Lord for the Holy Spirit. अपनी अपनी आवाजों को ऊंचा करें और पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर के सामने रोएं। Jesus, I believe in you. यीशु, मैं तुझ पे भरोसा रखता I हूँ। believe in your death on the cross. मैं क्रूस पर तेरी मृत्यु पर यकीन करता हूँ। I believe the resurrection power of Jesus Christ. मैं यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ पर भरोसा करता हूँ। Lord, fill me now with the Holy Spirit. परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Fill me, Lord, with your Holy Spirit. परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। How many of you are having the desire and longing inside your heart? आप में से कितने अपने हृदय में इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? Now you can cry to the Lord for your Holy Spirit. और अब आप परमेश्वर के सामने रोएं अपने पवित्र आत्मा के लिए। Now the heaven is opening. और अब स्वर्ग खुल रहा है। Now the glory of the Lord is coming and filling you. और अब परमेश्वर का सामर्थ और महिमा आपको भर रही है। Everyone be filled with the Holy Spirit now. हर एक पवित्र आत्मा से भर जाए अभी। Filled with the Holy Spirit now. हर एक पवित्र आत्मा से भर जाए The अभी। resurrection power of Jesus Christ is coming upon you. यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ आप पर आ रही है। Be filled with the resurrection power today. उस पुनरुत्थान की सामर्थ से आज भर जाए। All the evil powers are totally broken and destroyed in your life. हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत टूट रही है आज। Already all the evil spirit gone. और वो सारी दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं। Everyone receive the Holy Spirit. हर एक पवित्र आत्मा को ग्रहण करे। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण करे। The Holy Spirit is filling you right वो now. पवित्र आत्मा इसी समय आप में से हर एक को
को भर रहा है। Now you are a new creation. और अब आप एक नई सृष्टि You are a हैं। new creation. आप एक नई सृष्टि हैं। Jesus is living in you. यीशु मसीह आप में जीवित है। Jesus is living in you. वो आप में जिंदा है। He want to fill you with the gift of tongue right वो now. आपको इसी समय अन्य भाषा के सामर्थ से भरना चाहता Everyone, है। you open your mouth and pray in the heavenly language right हर now. एक अपनी आवाज को खोले और स्वर्ग के भाषाओं में बात करे। Now the Holy Spirit is coming. और अब पवित्र आत्मा आ रही है। Receive. ग्रहण करे। The power of the Holy Spirit is coming, every one of you. पवित्र आत्मा का सामर्थ आप में से हर एक पर आ रहा है। Be filled with the joy of the Holy Spirit right now. पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाए। It is filling you. वो आपको भर रहा है। Joy of the Lord is coming upon you. परमेश्वर का आनंद आपके ऊपर आ रहा है। No more worldly sorrows are inside your और heart. अब आपके हृदय में कोई डर और कोई दुख नहीं है। The devil can't enter your heart वो anymore. शैतान आपके हृदय को आप कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। You are going to grow in your spiritual life. और आप अपने आत्मिक क्षेत्र में वृद्धि करने Every one पाएंगे। of you going to pray more from today onward. आज से आप में से हर एक प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएगा। Every one of you grow more in the Holy Spirit today. और आज से आप पवित्र आत्मा में ज्यादा बढ़ेंगे। You are going to be all the time walk with the Holy Spirit every day. और आज से आप पवित्र आत्मा में ज्यादा से ज्यादा चलना शुरू करेंगे। So you can open your mouth and thank you, Lord. Say thank you, Jesus, for your grace. इसलिए अपनी जबान को खोले और उसे कहे, परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus, for your resurrection power. धन्यवाद परमेश्वर तेरे उस पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए। Thank you, Jesus, for your Holy Spirit. धन्यवाद परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के लिए। Thank you, Lord, for the anointing of the Holy Spirit. धन्यवाद परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Lord, bless every one of your children. परमेश्वर अपने प्रत्येक बच्चे को आशीष दे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen.